नाम सोफिया है, मैं 23 साल की हूँ, मेरी हाइट 5'5" है और ये है मेरी 3 प्रोफाइल्स। थैंक यू। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे। हेलो यू ऑल एस्पायरिंग एक्टर्स, बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं दबंग 3 की कास्टिंग कर रहा था। बॉलीवुड अभिनय मुंबई चैप्टर से करीब 15 लोग सेलेक्ट हुए थे और बॉलीवुड अभिनय चंडीगढ़ चैप्टर से 3 लोग सेलेक्ट हुए थे। 3 में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल था वो जाना था जिस एक्ट्रेस को, उसका नाम है सोफिया दून। बट कुछ एग्जाम के लास्ट डेट्स थी, कुछ तैयारी करनी थी। अभी हम पूछेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, आप क्यों नहीं पहुंच पाई थी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस हमारी अपनी बॉलीवुड अभिनय से, सोफिया दून को। हेलो सोफिया। हेलो सर। पहले तो ये बताओ, ये नाम कैसे, बीइंग हरियाणवी, ये सोफिया नाम कैसे पड़ा? So before my mother conceived me, she was reading a particular newspaper जिसमें Queen Sophia के बारे में लिखा हुआ था and what this name really meant. So my mother was really inspired by it and that's how my name really came. और एग्जैक्टली तुम पे सूट भी होता है सोफिया। कूल। अच्छा, अब ये बताओ, स्ट्रेट में दूसरे सवाल पर आने वाला, उसके पहले थोड़ा सा अपने एस्पायरिंग एक्टर्स को या बॉलीवुड के लोगों को या बॉलीवुड अभिनय के लोगों को अपने बारे में कुछ बताओ ना। Okay. So I'm 23 years old. मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ चंडीगढ़ में किया है. So I really wanted to do acting, theatre and everything. चंडीगढ़ में I think I started doing plays professionally मेरे bachelor's से. So that is 5 years before today. So मैं अपना bachelor's, master's and right now I'm doing mass comm. So the whole time I was studying, I was doing theatre. I started off my camera acting with Dharma for the first time. Till now, I've done like 2 Dharma movies. I've done a T series. I've done Onesie. That was a Punjabi movie, of course. So the whole process of it and understanding, I've done all this in Chandigarh. It's not nothing of this is in Bombay. I've done some songs and some as leads, some as second leads, of course. I've done with Annie Virk, I've done with Isha Gupta, and I've had a lovely experience. And all of it has been in Punjab, Chandigarh. Okay. So So it's like a journey. Actress and now celebrity Sophia, doing so much work there, correct? अच्छा, now Yes, tell me, sir. It's a long way to go from now. अच्छा कैसे आया कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है या मुझे इसी फील्ड में जाना है? कैसे ये जहन में आया था? मुझे हमेशा से बनना था. Like, मैं टीवी देखती थी and I used to watch a movie and I used to be like, फिर से ये चलाते हैं. I used to be the only person in my house जो बार-बार same movies देखती रहती थी and then you used to get inspired. But I did not have any way. Like मुझे नहीं पता था from where to start. So मैंने college join किया, मैंने bachelor's of arts किया. And randomly I saw a notice जो था कि आपको theatre join करना है, youth festival है, inter college होता है. If you want to join, you come to the auditorium. So I went. I was like, all right, I would want to see. So I went there. It was a lovely experience. मैंने अपने पूरा college time theatre किया. फिर जिन मैम के साथ मैंने वहाँ theatre किया, मैंने उनके साथ ही professionally theatre किया. And
it has been a journey. Like मुझे स्टार्टिंग में पता भी नहीं था from where to start. And of course, अभी मैंने चंडीगढ़ किया, I've just started, like, you know, if I say कि मैंने इतना time theater भी किया है, it's just a start for me. Even after 5-6 years, I feel I've not done enough. And I feel, of course, you know, every time you feel that, you know, you have to do more. And because I've done roles like in movies, maybe Dharma, maybe T series, I've done a friend's character. And it's a long journey to the main lead. And of course, to the major characters. ओके सो दोस्तों, आप लोगों को एक बात और मैं सोफिया के बारे में बताता हूँ कि सोफिया को नींद इसलिए नहीं आती है, सोचती इतना ज्यादा है, जब भी हम मिलते हैं तो डिस्कस करती है कि सर पूरी दुनिया को और अच्छा कैसे बनाएंगे, सर ये ग्लोबल वार्मिंग को ठीक कैसे करेंगे। एक बार ये हुआ कि ये कांटेक्ट में नहीं आ रही थी, तो मैंने हमारी जो सेकंड हेड है अनु, उनसे कहा, मैंने कहा सोफिया कहाँ है? सो बोली सर वो टच में ही नहीं है। सो पता चला क्या था कि थोड़े टाइम के लिए फोन ही ऑफ कर दिया था, फोन से दूर चली गई थी, रेडिएशंस नहीं चाहिए। आई होप सोफिया यू रिमेम्बर ऑल दिस। सो स्टिल यू आर द सेम कि ज्यादा रेडिएशन ना आए, ग्लोबल वार्मिंग, कोई सड़क पे मतलब कोई डॉगीज का बच्चा ना दिख जाए, कुछ ये ना हो जाए। हाँ Yes, sir. So apparently all this came up. हमने 11th क्लास में NSS ज्वाइन किया, and उसके बाद मैंने NSS, NCC, everywhere, you know, I've done all of this in Rotaract and everything. So I've understood how important it is to really look up to other things, and maybe little, you know, puppies, or, you know, little cats or animals who cannot speak. And the whole radiation thing, I still believe I have this particular time slot. I don't use my phone and I just keep it aside and forget. So that's like the major time when I miss out on calls and messages, and, you know, maybe laptop pe if there's a mail that strikes, so uski notification on rehti hai, but then nothing else. I just prefer कि थोड़ा time we all need to get out of our phones, out of the laptops or iPads or anything for that matter. एक इसी बात को लेके बहुत जल्दी हम सारे बॉलीवुड अभिनय के लोग कुछ बात डिस्कस करने वाले हैं, बहुत जल्दी, वेरी वेरी सून। और मुझे पता है कि जो मैं डिस्कस करूंगा वो सुनकर सबसे ज्यादा तुम खुश होगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी सोच का वो एक प्रोजेक्ट है। सो मुझे एक बात बताओ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब तुम्हारी पिक्चर शॉर्टलिस्ट हुई, जब तुम्हारा वीडियो देखा गया और जब मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा कि बहुत हमारा जो है वो एक फैमिली रिलेशन है, एंड बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। फिर एक दिन मुझे याद है, मैं और प्रभु देवा जी हम लोग लंच कर रहे थे, तो अचानक ही सेड, क्या रे, व्हाट हैपेंड टू सोफिया, वेयर इज शी? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए। मैंने कहा सर वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या एग्जाम था उस वक्त जो तुमने दबंग 3 सैक्रिफाइस किया? एक मेरे कॉलेज के सेमेस्टर मेरे कॉलेज के सेमेस्टर पेपर्स थे, एंड यू नो आई कुडंट गिव इट अगेन। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर द धर्मा मूवी आई डिड, फर्स्ट मूवी, उसके 1 या 2 दिन में उनको बोल दिया था मेरा इस दिन पेपर है, मैं इस दिन नहीं आ सकती। उसके 1 दिन पहले भी मैं शूट किया है, उसके 1 दिन बाद भी मैंने शूट किया है, but मैं उस पर्टिकुलर डे आई जस्ट फेल्ट लाइक इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू कंप्लीट द पेपर। अच्छा, फिर पास हुई या नहीं? यस सर, पास हो गई, बीए भी खत्म हो गई, एमए भी हो गई है। अच्छा, ये पढ़ने का जो शौक है तुम्हें, अब और पढ़ रही हो, फिर और पढ़ती रहती हो, सो ये कब तक तुम डिग्रीज और पढ़ती रहोगी? अभी तुम अभी क्या पढ़ रही हो? मास कम्युनिकेशन? यस सर, मास कम्युनिकेशन। ओके। और मुझे याद है तुमने मुझे एक बार फोन करके बोला था आज के 2 साल पहले कि सर मैं दिल्ली में इको पढ़ने जा रही हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रही हूँ, या कुछ ऐसा तुमने कहा था कि मैं कुछ सोशियोलॉजी। ओह या सॉरी यस। यस। तो
वो भी पढ़ना है साथ में? नहीं सर, मैंने मास्टर्स सोशियोलॉजी में कर लिया है. I did not end up going to Delhi. I did it from here only, Punjab University. I've done that. And now that's complete. Masters in sociology is done. And now this postgraduate thing for mass communication is going on. Cool. So मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तुम थिएटर कर रही थी, ये सारे बड़े प्रोडक्शन की फिल्म्स कर रही हो, बॉलीवुड अभिनय से या नवकुमार राजू से जुड़ने के बाद क्या फर्क आया, क्या फर्क महसूस किया तुमने? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।